students, Hari Om, good morning. So we are continuing our chapter number 10, working with tables. In the last chapter we have seen how to create a table. There we have seen two ways. One is the wizard and second is the design view. Now you have created the table. Now you can insert the data in the table, which we have seen in the last session. That how can you insert the data, then about the record pointer and the record selector box and the different icon. For example, the green icon with flash is the end of the table mark, then record pointer, then black pointing arrow, the pencil icon is an edit icon where you can edit something. Then in the last session we have seen about the navigation bar. This is the last point of the navigation bar. That is the current record, total record and new record, last record, next record, previous record, first record. ऐसे record आप उसके अंदर insert कर सकते हैं. That is the data sheet view. It is known as the data sheet view. Now editing records in the table. The data once entered may have to be edited for one of the following two reasons. First, the data entered during data entry is incorrect. दो चीजें हो सकती है डेटा एंट्री में अगर आपको चेंज करना है तो. पहला, अगर आपने डेटा एंट्री किया है वो इनकरेक्ट है, सही से ना आपने फिलअप किया हो. और दूसरा है आफ्टर करेक्ट डेटा एंट्री देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डेटा. इन दिस केस वी हैव टू एडिट आवर रिकॉर्ड. डेटा एंट्री हो जाती है, उसके बाद अगर कोई वैल्यूज में चेंज होता है तो हमें अपना रिकॉर्ड एडिट करने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट वी हैव एंटर्ड द करेक्ट एड्रेस ऑफ a particular supplier. After some time the supplier shifts his company location. आपने अच्छे से रिकॉर्ड एंटर किया, प्रॉपर रिकॉर्ड ही एंटर किया, सप्लायर का जो एड्रेस एंटर किया आपने, बट वो सप्लायर ही अपने प्लेस चेंज कर रहा है. अब सप्लायर ने अपने कंपनी का लोकेशन ही चेंज कर दिया तो आपको भी उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा. In this case, though the address of the supplier was entered correctly, we will have to edit in due to changing the location. कुछ भी चेंजेस आता है तो वो हमें उसके अंदर एडिट करना पड़ता है. The process of correcting the data entered previously is known as the editing. Editing की definition भी है कि the process of correcting the data entered किया हुआ data जो previously entered किया आपने उसके अंदर कुछ correcting करोगे, that is known as the editing. To do edit operation, we have to open the table and simply place the cursor on the field value that we want to edit and make the desired correction. Now ये पता चल गया आपको क्या एडिटिंग करना है, कैसे वर्क करना है. उसके अंदर टेबल है, उसमें सिंपली प्लेस कर्सर वहां पे ले जाइए, जिस फील्ड में वैल्यू चेंज करना चाहते हो वहां पे ले जाइए, क्लिक कीजिए, आप एडिट आइकन आ जाएगा, वहां से जाके जो कुछ भी आपको करेक्शन करना है, जो भी डिजायर्ड करेक्शन है वो करेक्शन आप कर दीजिए, उसके अंदर वो चेंजेस उसमें हो जाएगा. नेक्स्ट इज द डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. To keep our database precise and meaningful, it is very much necessary to delete unnecessary or incorrect records from the table. Doing this will provide clear picture and at the same time it will free some disk space. अगर हमारे डेटाबेस है, हमें पता है डेटाबेस हमने देखा था कि भाई डेटाबेस में डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है. We all know about the data importance of the data कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जब भी चाहिए हमें वापस मिलना चाहिए. अब ऐसा जो मीनिंगफुल है, प्रिसाइज जो डाटा है हमारा, उसमें अगर कुछ अननेसेसरी डेटा है जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको निकाल देना बहुत जरूरी है, इसलिए डिलीट करना बहुत जरूरी है उसको. डूइंग दिस विल प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर एंड एट द सेम टाइम इट विल फ्री सम टाइम. एक क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगा और साथ में आपके डिस्क पे जो स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रही है वो भी फ्री हो जाएगी. To delete any record from the table, open the table and select unwanted record. जो भी record delete करना है उसको select कर लीजिए table open करके. After selecting the record, we can delete is used following two ways. Two ways है delete करने. First, by pressing delete key, कीबोर्ड पे जो del की है हमारी delete की उसको प्रेस कीजिए और select data option from the edit menu, या फिर edit menu में भी data option आपको delete करने का मिल जाएगा. Then by right clicking the selected record and choose delete record option from the sub menu. जैसे उसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो जो पॉपअप मेनू खुलता है उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट रिकॉर्ड का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. When you delete the record, Base will display a dialog box with a warning message as shown in figure 10.3. जैसे आप उसको डिलीट करने जाओगे एक वार्निंग मैसेज आएगा आपके सामने. हर बार सब में आता है, ये ध्यान में रखिएगा कि क्या है, डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्ट डाटा, यस और नो. आप सही में उसको डिलीट करना चाहते हो, हाँ वो सही में करना तो यस. इफ योर माइंड विल बी चेंज, अगर माइंड चेंज हो जाए नहीं यार ये मैं गलती से इसको नहीं डिलीट करना चाहिए तो नो कर दीजिए, वो डिलीट नहीं होगा.
From this dialog box, if we click on the yes button, then the select record will be deleted from the table permanently delete हो जाएगा. But if we click on no button, the record will not be deleted from the table and it will be redisplay in the view. फिर से display हो जाएगा view में. Now sorting data in the table. We create and maintain the database because our final aim is to find the information as and when needed. मेन हमारा aim यही है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा है, जो उसके ऊपर से जो प्रोसेस करके जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़े मैं उसको वापस ले सकूं, मुझे वो मिल जाए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या चाहती है कि फॉर एग्जांपल उसको सेल्स का डेटा है कि भाई इस मंथ में उसको ऐसा चाहता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर मंथ चल रहा है तो सितंबर मंथ में कौन कितने सेल्स हुआ, कितना सेल्स हुआ, उसका रिकॉर्ड चाहिए, उसको उसका डेटा चाहिए. तो कहाँ से मिलेगा उसको? उसके डेटाबेस के अंदर उसने स्टोर करके रखा, वहां से इजीली मिल जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिटेल्स ले सकती है, सभी इन्फॉर्मेशन. यानी सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि जब भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीडेड मिलनी चाहिए. Gradually the records in the table will increase hands to get the information easily and speedily. It is desirable that the data in the table is arranged in some particular order. जब भी आप ऐसा चाहते हो कि जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो स्पीडली मिल जाए और इजीली मिल जानी चाहिए, तो वो जो स्पीड जो आपको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपका जो टेबल के अंदर जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा. A product table may contain thousands of records related to different products. यहाँ पे तो आप नॉर्मली सिंपल 4-5 रिकॉर्ड वर्क करें इसलिए आपको इजी लगता है, बट नॉर्मल रियल फील्ड में जो वर्क होता है, जो डेटाबेस होता है, मोर देन थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर. अब वहाँ जो थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स है रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट, तो उसमें से अगर कुछ पर्टिकुलर चाहिए तो आपको उसको प्रॉपरली फाइंड करना पड़ेगा. Assume that we want to find the details of particular column, particular product along with its price. कोई प्रोडक्ट का टेबल है हमारे पास जिसमें 1000 प्रोडक्ट्स है डिफरेंट, उसमें से मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए प्राइस के साथ चाहिए. Now in this case, if the product table is arranged in order to fill P code, प्रोडक्ट कोड जो हमने लिया था, प्रोडक्ट का टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट का टेबल बनाया था उसमें हमने अरेंज कैसे किया था? P कोड के हिसाब से, P01, P02 या फिर 01, 2, 3 ऐसे नंबरिंग किया था. It becomes very easy for us to find. But suppose we don't know the product code, but हमें product code पता ही नहीं है, then definitely we can't find the record on the product easily and speedily. हमें कोई फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट ले, अब ऐसा जरूरी थोड़ा है कि उस प्रोडक्ट कोड का पर याद आपको पर, अब थाउजेंड्स प्रोडक्ट है तो सभी के प्रोडक्ट कोड याद ना भी रहे, तो अगर प्रोडक्ट कोड नहीं पता है आपको तो फिर क्या होगा? तो इसलिए आपको ये कि भाई क्या करना है, डेफिनेटली वी कांट फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट इजीली एंड स्पीड. फिर हमें उस प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड है वो जितना आप इजी चाहते हो इतना इजी और स्पीडी नहीं मिलेगा. बट इफ वी हैव अरेंज द प्रोडक्ट टेबल इन ऑर्डर ऑफ पी कोड एंड सेलिंग प्राइस, देन इट विल बी इजी टू गेट द डिजायर्ड रिकॉर्ड. अगर आप उसको ऐसे प्रोडक्ट टेबल का उसको पी कोड के साथ सेलिंग प्राइस फील्ड के साथ भी उसको अरेंज करके रख दोगे. फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे हाईएस्ट सेलिंग है, आपने अगर ऑनलाइन परचेज की हो कभी, तो उसमें जो प्रोडक्ट जो आप फाइंड आउट करते हो ना, तो उसमें आपको फिल्टरिंग का ऑप्शन मिलता है, सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है. तो उसमें भी आपको ऐसा होता है इसमें होता है कि भाई सॉर्टिंग बाय लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट प्राइस के हिसाब, तो ऐसा यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो. बट इफ वी हैव अरेंज द प्रोडक्ट P code and selling price, it will be easy to get the desired record. So let us see how to sort the table. चलो आज देखते हैं कैसे टेबल को इस्तेमाल है. Table can be sorted in one of the two ways as mentioned below. Two way बताया गया, उसमें देखिए कौन कौन से. First one, select on the field that we want to sort and then click on either sort ascending button or sort descending button get from the table as per your needs. Toolbox जो होता है ना हमारा, उसके अंदर जो होता है उसके अंदर ये दो बटन मिलते हैं आपको, शॉर्ट असेंडिंग का और शॉर्ट डिसेंडिंग. ऐसे A to Z और Z to A ऐसा ड्रॉ किया होता है. टूल्स को जो टूल बार होता है ना, हमारे टूल बार के ऊपर ऐसा बटन होता है, इसमें A to Z है तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट कर देगा. Z to A पे क्लिक करोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर. जिस फील्ड को आप सिलेक्ट करोगे उस फील्ड को सिलेक्ट करके उसमें वो बटन आपको प्रेस करने, तो आप अपने हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिव क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन. उसके साथ तीसरा बटन भी होता है, सॉर्ट का बटन भी होता है. देखिए यहाँ पे ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखिए ये जो टूल बार है हमारा, मेनू बार के नीचे जो टूल बार है हमारा, तो उस टूल बार के अंदर देखिए इस तरह से बटन्स है. तो ये जो है ये A to Z है, Z to A है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. और ये जो है बाद में ये जो सॉर्टिंग का ऑर्डर है, यानी उसमें जो हम जो दूसरा जो वे देखने वाला है सॉर्ट वाला, वो इसमें है.
सेकंड वे जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर ये जो है हमारा ये Alternatively, click on the sort button and dialog box as shown in the figure 10.4. 10.4 है, ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें विल बी डिस्प्ले। इसमें क्या क्या सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे करना है, तो पहला होगा ऑपरेटर, इसमें फील्ड नेम और ऑर्डर होगा, फिर एंड देन तीन तरह से आप सेट कर सकते हो, उसको सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, एंड देन दूसरी भी उसमें एक ऐड कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस के वाइज भी उसको असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सेट करना है, और एंड देन फिर अगर तीसरी रखनी हो तो रख सकते हो। इस तरह से आप उसके अंदर सॉर्टिंग कर सकते हो। मैं आपको जैसे स्कूल की बात कर रहा हूँ कि स्कूल में किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल तीन तरह से मुझे सॉर्टिंग करना, स्टूडेंट का लिस्ट है मेरे पास, उसमें सॉर्टिंग करना है तो तीन वे है। तो जिसमें फील्ड नेम है उसमें फील्ड नेम में पहला मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एल नेम। एल नेम मीन्स क्या हुआ, लास्ट नेम सरनेम, तो सरनेम के ऑर्डर में वो आ जाएगा। अब समझो कि सरनेम सेम आ रही है, देन व्हाट, तो फिर मैं एंड देन में जाऊंगा, दूसरा लूंगा फर्स्ट नेम एफ नेम, यानी कि सरनेम से फॉर एग्जाम्पल हमारे गुजरात इन द गुजरात की गुजरात जो है, तो गुजरात के अंदर पटेल सरनेम है वो सबसे ज्यादा आ रही है, तो पटेल सरनेम जो आ रही है, देन व्हाट, क्या करना है आपको, तो पटेल सरनेम सेम आ रही है सब में, तो उसके बाद एंड देन में जाके फर्स्ट नेम ले रहा हूं मैं, तो फर्स्ट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में मैं सेट कर दूंगा, तो फर्स्ट नेम। अब समझो कि ये दो भी आ रहा है, सरनेम भी सेम आ रही है और नेम भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल पटेल जयेश दो बार, मेरे लास्ट ईयर जो क्लास था उसमें था कि पटेल जयेश दो बार था, दोनों का नाम पटेल जयेश था, तो अब ना हुआ तो तीसरे में जाएंगे, तीसरे में हम ले लेंगे एम नेम, यानी कि मिडिल नेम, यानी कि फादर का है, तो वो अलग हो जाएगा। यानी तीनों में से कोई भी एक हम सॉर्टिंग करके उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी है तो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एसेसरीज है, तो सब कंप्यूटर एसेसरीज में भी है, तो भाई उसमें सब बहुत सारी कंप्यूटर एसेसरीज, तो उसको किससे सॉर्ट आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से डिफरेंट आप सॉर्टिंग उसके अंदर कर सकते हो, डिफरेंट वे से सॉर्टिंग बना सकते हो उसके अंदर। Select appropriate field value under the field name drop down box and choose required order of sorting under the order drop down box। यहाँ पे जो बटन एरो है उसके ऊपर जो आप क्लिक कर सकते सेट कर सकते हो। In our case the product table will sorted based on the product category in ascending order first, and then the data will be assigned to be sorted in ascending order of the selling price field। ये जो हमारा जो केस है उसमें इसे बताया गया है, वह प्रोडक्ट टेबल है हमारा, तो उसमें सॉर्टेड पहले कौन सा सॉर्टेड किया गया हमने, प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब वो पहले उसमें होगा, फिर उसके बाद जो डेटा वो फिर से सॉर्टिंग करें, जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट कैटेगरी है मोबाइल एसेसरीज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी से अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसके सॉर्ट आउट में हम दूसरे फील्ड में जाएंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस को उसके अंदर उसका ऑर्डर सेट कर देंगे। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ऑल लैपटॉप्स वुड बी प्रीसेट, all mobiles within laptops and mobile, the record will be arranged according to their selling price with product with the lesser price listed first। जैसे यहाँ पे दिया कि भाई लैपटॉप प्रोडक्ट कैटेगरी में आ रहा है लैपटॉप, तो लैपटॉप है तो लैपटॉप में बहुत सारे HP के हैं, लिनोवो के हैं, डेल के, ऐसे बहुत सारे, उसमें भी मॉडल नंबर वाइज आते हैं, तब उसमें लैपटॉप कैटेगरी है तो उसमें जो है तो अब उसमें कैसे ये सभी के आगे कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी तो लैपटॉप ही आएगा, तो उसको कैसे अब अरेंजिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने सेलिंग प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है, मीन्स क्या होगा कि लेजर सबसे कम प्राइस जो होगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे आगे, फिर उससे आगे, उससे आगे, इस तरह से प्राइस बाय लिस्टेड हो जाएगी। सेम मोबाइल में भी है, मोबाइल है तो मोबाइल भी बहुत सारे कंपनी के हैं, तो मोबाइल प्रोडक्ट कैटेगरी में तो मोबाइल वाला उसका जो आएगा, बट बहुत सारे प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट कैटेगरी मोबाइल होगी, तो उसके सामने भी उसको जो कम प्राइस होगी, सबसे कम प्राइस होगी वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में लिया। असेंडिंग ऑर्डर यानी लिस्ट टू हाईएस्ट पे जाएगा, यानी जो सबसे कम प्राइस होगी वो पहले आएगा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा, ऐसे कर करके वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। अगर आपको हाईएस्ट से पहले लेना है सेलिंग प्राइस के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल जैसे हम मार्क्स की बात करें, भाई हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, तो फिर हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर आएंगे, और इस तरह से यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप सेट करके उसके अंदर सॉर्टिंग सेट कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा सॉर्टिंग होगा। तो आज के दिन के लिए हम अभी आपके एग्जाम भी चल रही है, तो इसलिए हम इसको सॉर्ट सिंपली ऐसे यहाँ तक ही छोटे छोटे वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आज हमने देखा एडिटिंग करना है, रिकॉर्ड एंट्री आपने कर दी है, अब उसको एडिट कैसे करना है,
तो जो इनकरेक्ट डेटा है उसको एडिटिंग करेंगे हम। यहाँ पे डेफिनेशन भी देखी, द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द डेटा एंटर्ड प्रीवियसली इज नॉन एज द एडिटिंग। आप डिफरेंट डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट आइकन भी है हमारे पास। फिर अननेसेसरी डेटा है अगर हमारा डेटाबेस में, तो उसको डिलीट कर दीजिए, जिससे हमारी डिस्क स्पेस भी थोड़ी फ्री हो जाएगी और हमें जो अनवांटेड डेटा जो हमारे सामने आएगा वो भी निकल जाएगा। दो ऑप्शन है, आप डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर दीजिए, फिर डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देन पहले पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट और नॉट, तो यहाँ पे यस नो ऑप्शन आपके सामने है। देन सॉर्टिंग, जो भी रिकॉर्ड चाहिए हम रिकॉर्ड को आप फिल्टरिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, A to Z असेंडिंग ऑर्डर में या फिर Z to डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही चीज नंबर में भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट करके रख सकते हो। उससे कुछ एग्जांपल्स हमने जो है, फिर सॉर्ट आउट बटन भी है, वहां से भी आप तीन टाइप का सॉर्टिंग कर सकते हो, जिसके भी एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो इस तरह से डिफरेंट हम सॉर्टिंग उसके अंदर कर सकते हैं, और जो भी सॉर्टिंग है हमें जो प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए वैसा प्रॉपर रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। तो आज यहाँ तक है। इसके बाद जो है कंट्रोलिंग डेटाबेस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के दिन के लिए बस हम यही इतना ही रखते हैं। यहाँ तक जो हमने देखा टेबल, वर्किंग विद द टेबल, चैप्टर 10 जो हमारा है वर्किंग विद द टेबल, उसके अंदर नॉर्मली चैप्टर 9 हमने देख लिया, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना वो देख लिया। अब यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हमने ये पार्ट देख लिया कि भाई टेबल के अंदर कैसे काम करना। अब उसके बाद जो चालू होने वाला है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी डेटा रिडंडेंसी क्या है, रिलेशनल मॉडल जो हमने देखा था RDBMS वो किस तरह से वर्क करेगा, फील्ड वैलिडेशन से वो थोड़ा डिटेल्स में सीखने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो आज के दिन तक यहीं पे देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।